Hello all, welcome back to my channel Catharsis. So this is in continuation to the first part of the video that was posted yesterday. We'll be continuing with the second part of the first chapter of NCERT psychology, and I had kind of covered a few topics which were like the most significant ones from the chapter. A quick recap of whatever we had covered yesterday. So we had started with talking on intelligence. We discussed the definition. We discussed the various definitions which have been given by different proponents. They are not necessarily similar to each other, and so it is very much important to kind of mention all the definitions whenever you are asked to write one. Although this simple a question is not expected in the board examination, but you should still know at least 3 to 4 definitions. So बहुत ज़रूरी है कि आपको 3 से 4 definitions पता हो जब आपको ये आंसर लिखना होगा. And other than this, we had discussed the 2 major approaches to studying intelligence. We had discussed psychometric approach. We had discussed information processing approach. Psychometric approach is like a structural approach to intelligence. It considers intelligence as a structural unit. It says that intelligence is a single index of cognitive abilities. There is just one set of abilities जो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम यूज करते हैं. अगर वो आप में है तो आप इंटेलिजेंट हो. अगर आप में वो सेट ऑफ एबिलिटीज नहीं है, सो यू आर नॉट इंटेलिजेंट अकॉर्डिंग टू साइकोमेट्रिक अप्रोच टू इंटेलिजेंस. There were certain theories which are listed under psychometric approach. There is unifactor theory which was given by Binet and Simon. Binet and Simon की theory actual में psychometric approach का एक बहुत major way में representation है. बिने और साइमन ने ये कहा था कि अगर कुछ सेट ऑफ एबिलिटीज, एक ही सेट ऑफ एबिलिटीज एक बच्चे में है तो वो हाईली इंटेलिजेंट है. अगर वो सेट ऑफ एबिलिटीज बच्चे में नहीं है तो वो नॉन इंटेलिजेंट है. सो ये बहुत ही परफेक्टली साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर थ्योरी आती है, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय बिने एंड साइमन. सेकेंड थ्योरी हमने 2 फैक्टर थ्योरी की थी जो कि जी फैक्टर एंड एस फैक्टर होता है, विच वॉज गिवन बाय स्पीयरमैन. General factor and specific factor. So you may be good with singing, that's a specific factor you are good with. In addition to that, if you have general problem solving ability, then that's your general factor. And together they'll make you intelligent in a particular domain, which is music. Then there is Thurston's primary mental abilities. Primary mental abilities उन्होंने 7 दी थी, and they again he mentioned that the person who has these abilities are interdependent and independent of each other. जिनमें वो abilities हैं वो intelligent हैं, नहीं है so non-intelligent. Then we did Jensen's hierarchical model, which is level 1 and level 2. Level 1 says कि जितना input उतना ही output equal. So rote learning is an example of level 1. You are not adding to the information in any way. You are just simply copying and pasting. Level 2 is cognitive competence, which says higher order thinking. So जो आपके input आ रहा है उससे ज़्यादा output निकल रहा है. That's level 2 given by Jensen. Then the next one is theory by Guilford, which is structure of intellect model. स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल के नीचे कॉप मैंने आपको एक अब्रिविएशन दिया था. इट्स कॉल्ड कॉप. सी स्टैंड्स फॉर कंटेंट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट. जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम इनकोड कर रहे हैं, चाहे वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, दैट्स ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन. अगर मैं आपको कोई विजुअल्स दिखाऊंगी दैट विल बी विजुअल इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ कंटेंट. देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ कंटेंट. आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके ऊपर आप अपना ऑपरेशन लगाते हो, प्रोसेसिंग करते हो, वो 6 तरीके के होते हैं. ऑपरेशन के बाद आपके पास प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी 6 तरीके के होते हैं. सो प्रोडक्ट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैटेगरीज एंड क्लासेस. आप जैसे भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हो, तो दैट मेक्स इट 6. So 6 into 5, which is 180 cells of different combinations of abilities people may possess. That was structure of intellect model. Whatever points I am mentioning are the ones which you are supposed to write. हमेशा ये इंश्योर करो बोर्ड एग्जाम में राइट इन पॉइंट्स, पैराग्राफ्स आर नॉट एंटरटेन्ड. प्लीज इंश्योर कि आपको पॉइंट्स में लिखने की एक आदत बने.
start with an introduction, give a very brief introduction, then give points which are important, and then a conclusion. That will be like a perfect answer. After this, we had done theory of multiple intelligence, which was given by Gardner. This is neither a part of psychometric approach nor a part of information processing approach. It's a separate theory. तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आपको उसको एक सेपरेट थ्योरी कंसिडर करना है. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू अप्रोचेस. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच अलग है. सो उससे पहले हम गार्डनर की बात करते हैं. गार्डनर ने 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दिया था एज पर एनसीईआरटी, बट देयर इज एक्चुअली अ 9th टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल विच हैजंट बीन मेंशन्ड इन एनसीईआरटी. ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस डिफरेंट डोमेन्स को पोर्ट्रे करते हैं, और ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि ये इकट्ठा भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दैट मीन्स इफ यू आर गुड विद से म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इट डजंट मीन यू हैव टू बी गुड विद लिंग्विस्टिक ऑल्सो. यू मे नॉट बी गुड विद दैट. So it's interdependent but independent of each other. So please ensure that आप ठीक words use करो. After this, we did information processing approach. Information processing approach considers how an intellectual person acts rather than being focused on the structure of intelligence. It is important to consider that information processing approach ka focus is on how an intellectual person acts, how an intellectual person processes information. That is what information processing approach is concerned with. इसके अंदर 2 theories थी, एक triarchic theory, एक pass model. Triarchic theory जो स्टर्नबर्ग ने दी थी, it says that intelligence is the ability to adapt, shape or select environment to fulfill one's own goals and aspirations and those of one's society. इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस थे, जो कि कॉम्पोनेंशियल, कंटेक्चुअल और एक्सपीरियंशियल थे. कॉम्पोनेंशियल का दूसरा नाम था एनालिटिकल इंटेलिजेंस, सेकंड था एक्सपीरियंशियल, विच इज अगेन अनदर नेम फॉर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जहां पास्ट एक्सपीरियंसेस को क्रिएटिवली यूज करते हो टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स. देन थर्ड था contextual, which is again the name suggests, as the name suggests, context, which is the environment. अगर आप environment में problems जल्दी solve करते हो, आप में street smart आप हो, and you have a business sense, that's what makes you high on contextual intelligence. So basically these are the various theories of intelligence which were there. Briefly we had discussed formal and informal ways of assessing people. We had also discussed individual differences. We had discussed situationism. We had also very briefly introduced psychological attributes, right? So now we'll continue with the rest of the video. अभी approximately 8 minutes में हमने सिर्फ recap किया है. So now I am continuing with the new part, the second part and the last part of the chapter. So the next topic which is lined up is individual differences in intelligence, page 10. So I'm continuing with this. इसके अंदर जो बहुत मेन टॉपिक आता है, जो जनरली 4 मार्कर्स के वे में आता है, हाउ इज इंटेलिजेंस एंड इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर. हियर नेचर एंड नर्चर आर अदर टर्म्स फॉर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हमारी जीन्स हमारी इंटेलिजेंस को कितना इन्फ्लुएंस करती है, या हमारा एनवायरनमेंट कितना इन्फ्लुएंस करता है हमारी इंटेलिजेंस को. अगर हम जीन्स और एनवायरनमेंट की बात करें तो मेजर फॉर्म ऑफ स्टडीज इन दिस रिगार्ड वर डन ऑन अडॉप्टेड चिल्ड्रन, ऑन ट्विन्स, एंड एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को स्टडी करने के लिए एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन पे स्टडी की गई थी. सो अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स, अगर आई होप आपको आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स के बीच का डिफरेंस पता है. Identical twins basically is like when one egg gets fertilized into 2. It's like one egg gets fertilized and it's basically the 2 twins are from the same egg. In case of fraternal twins, there are 2 eggs that get fertilized, so that makes it 2. So identical twins का इसका मतलब ये बात हुई कि उनकी genes में similarity बहुत ज़्यादा होगी. It will be like almost 100% match. Fraternal twins, on the other hand, may have a little, what you call proportion of difference in terms of genes. So all sorts of studies in this regard were done on twins and siblings as well.
तो जीन्स का इन्फ्लुएंस देखने के लिए इंटेलिजेंस पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट में निकाला जाता था. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नथिंग एल्स बट इट्स अ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट जिस पे हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे. तो ये देखा गया था, इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. तो हाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट मीन्स दैट टू थिंग्स आर वेरी मच सिग्निफिकेंटली सिमिलर टू ईच अदर. तो आइडेंटिकल ट्विन्स को स्टडी किया गया तो देखा गया उनकी इंटेलिजेंस, जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स जो इकट्ठे रहते थे, एक साथ रहते थे, उनकी इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट 0.9 सिमिलर थी कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, विच इज़ अ वेरी वेरी हाई नंबर. आइडेंटिकल ट्विन्स जो ऑब्वियसली सेम एनवायरनमेंट में थे उनकी 0.90 थी, और आइडेंटिकल ट्विन्स जो अलग से रह रहे थे, जो एक दूसरे से अलग रह रहे थे, उनकी इंटेलिजेंस का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.90 से थोड़ा सा कम होके 0.72 हो गया था. So that is signifying this, that is indicating the fact that environment does have an influence. क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स के जीन्स में कोई फर्क नहीं था, बट उनकी एनवायरनमेंट जो था वो शेयर्ड एंड नॉन शेयर्ड में वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट कम होके 0.72 हो गया था. नेक्स्ट जो हमारा स्टडी था वो फ्रेटर्नल ट्विन्स पे थी. फ्रेटर्नल ट्विन्स ऑफ कोर्स जीन्स में उनका थोड़ा सा कम आ जाता है सिमिलैरिटी. जो फ्रेटर्नल ट्विन्स इकट्ठे रह रहे थे उनकी इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट 0.60 था. सो 0.60 आप याद करो तो आइडेंटिकल ट्विन्स हु वर स्टेइंग टुगेदर उनका 0.90 था, और यहाँ फ्रेटर्नल ट्विन्स विच आर 2 different eggs fertilized 0.60. So there's a difference. Here again it is indicating there is a difference because of genes, right? So genes do have an influence on intelligence. Then comes brothers and sisters, siblings of course, जो जीन्स में जिनका इतनी सिमिलरिटी नहीं होएगी एज कम्पेयर टू ट्विन्स, उनका शेयर्ड एनवायरनमेंट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट था 0.50. उनकी इंटेलिजेंस 0.50 सिमिलर थी. और सिबलिंग्स जो कि एक दूसरे से दूर रह रहे थे उनकी और घट के 0.25 हो गई. तो ये सारी वैल्यूज एक्चुअल में यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू रिकॉल while writing the answer. It will give a good impression to the examiner also. It very clearly indicates that both genes and environment have an influence on intelligence. दोनों की influence को हम ignore नहीं कर सकते. Similarly, इसी रिगार्ड में adopted children पे भी ये स्टडी हुई थी, एंड adopted children का ये देखा गया कि उनकी इंटेलिजेंस इनिशियल टाइम्स में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर होती थी. बट व्हेन दे वर गिवन अ गुड एनवायरनमेंट, अ गुड एनरिचिंग एनवायरनमेंट, एंड दे वर सेंट टू स्कूल एंड दे वर गिवन गुड एजुकेशन, उनकी इंटेलिजेंस स्टार्टेड टू क्लोजली रिजेंबल देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स. सो दैट्स बेसिकली द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट. आपको इस बारे में ज़्यादा जानना हो तो यू कैन इवन रीड अबाउट स्टीव जॉब्स एंड हाउ he was introduced to computers while staying with his adopted parents. He was an adopted child, and his adopted father had a garage which was turned into a computer, what you call room, and that's where Steve Jobs met computers. So please read more about it and you will be able to understand how environment influences somebody's intelligence, right? So this was about interplay of nature and nurture. The next topic is assessment of intelligence. Here we talk about IQ. IQ की बात जब भी हम करेंगे तो mental age और chronological age की बात करना बहुत ज़रूरी है. MA is the mental age. It basically says कि आपका intellectual level अपने से साथ वाले लोगों से कितना मैच खाता है. So if I am say 30 years old, सो मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल बाकी के 30 ईयर ओल्ड लोगों से कितना मैच खाता है, दैट्स मेंटल एज. सो माई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पीपल हु बिलोंग टू माई एज ग्रुप, दैट्स मेंटल एज. Chronological age is my biological age. If I'm 30 years old, that's my CA. So IQ का formula which was given by William Stern in 1912, he says IQ equals to MA upon CA into 100. Of course 100 क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए. MA upon CA. ये MA एंड CA का कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी माना गया था कि बिने ने इवन मेंटल डेफिशिएंसी की डेफिनेशन दी थी, जो कि बहुत एक छोटी सी लाइन यहाँ पर बिल्कुल छुपी हुई सी लाइन है, पेज 10 पे जो आपको दिखेगी. He said that mental deficiency is 2 mental age years below chronological age. मतलब 2 mental age years
CA से कम होना इस मेंटल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो इसकी सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है। IQ हमारे पास जब निकल जाती है तो ऑब्वियसली उसके बेसिस पे भी बहुत सारे कैटेगरीज बनाई गई हैं। सो आई जस्ट क्विकली शो यू दिस पेज। आप ये कर्व देखोगे, दिस पर्टिकुलर कर्व, it's a bell shaped curve, right? It's a bell shaped, it's like an inverted bell, how the bell obviously appears. अगर इसके हम रेयर कॉर्नर्स देखेंगे, दोनों रेयर कॉर्नर्स देखेंगे, तो आप ऑब्वियसली देख रहे हो कि मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वुड लाई इन दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देर आर रेयर प्रोपोर्शंस ऑन द टू एजेस, द टू एक्सट्रीम्स। जो बिलो साइड, सो IQ बिलो 70 इज मेंटल एफिशिएंसी, IQ above 130 is intellectual giftedness. दोनों को हम कंसिडर करेंगे अलग अलग। सो जो मैक्सिमम लोग हैं वो है 90 to 110 के बीच में। IQ equals to 90 to 110 के बीच का रेंज इज मीन, so mean is 100, right? That's where the major proportion of people lie. So if the question comes, why is normal probability curve of intelligence or IQ bell-shaped curve? Because a major proportion of people lie in the middle category and mean at 100. Mean is at 100, the average is at 100 and the normal range is 90 to 110. एंड जो रेयर एक्सट्रीम्स हैं IQ बिलो 70 एंड IQ अबव 130, वो रेयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन उनके अंडर आती है। टॉकिंग अबाउट द टू एक्सट्रीम्स, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के लिए आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है AAMD, विच इज़ अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी की डेफिनेशन। देर आर 3 important parts in this definition. This is page 12. It says that mental deficiency or intellectual disability is significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during developmental period. So it's basically sub-average intellectual functioning. पहला point जो आपको पता होना चाहिए, sub-average intellectual functioning. Second point, it is deficits in adaptive behavior. That's the second point. There are deficits in adaptive behavior. And third important point in this definition is it is depicted in the developmental period of a person, which is 0 to 18 years of age. 0 to 18 years of age में अगर ये develop होता है तो that is mental deficiency. अगर उसके बाद develop हो रहा है तो it is closer to the symptomology of dementia. Then that can't be considered mental deficiency. वो dementia होता है अगर 18 के बाद ये develop होता है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेंटल एफिशिएंसी। पता होना चाहिए, इनके वैल्यूज पता होने चाहिए आपको अच्छे से, जो कि बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस इज द अदर रेयर, इट्स द अदर रेयर साइड विच इज IQ अबव 130। IQ अबव 130 ऑफ कोर्स ल्यूइस टर्मन ने बहुत इस पर स्टडीज की थी। He said that giftedness basically is exceptional general ability. अगर ये क्वेश्चन, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट, दोनों का डिफरेंस बस यही है कि गिफ्टेडनेस इज जनरल, एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी, जनरल इज अ टर्म, और यहाँ टैलेंट में इट्स अ रिमार्केबल स्पेसिफिक एबिलिटी। तो आप टैलेंट किसी एक टैलेंटेड एक किसी एरिया में होते हो, जैसे सिंगिंग या कंप्यूटर्स या मैथमेटिक्स एंड अदर सच फील्ड्स, राइट? एंड गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी। तो गिफ्टेडनेस इज जनरल, टैलेंट इज स्पेसिफिक। गिफ्टेडनेस को और एलैबोरेटली डिफाइन करने के लिए यहाँ कुछ हाईलाइटेड टर्म्स दिए हुए हैं। इट शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, अ गिफ्टेड चाइल्ड शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट, राइट? एंड इसके अलावा भी ये कुछ बुलेट पॉइंट्स जो यहाँ दिए हुए हैं पेज 13 पे, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एडवांस्ड परसेप्चुअल स्पीड एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, इंट्रिंसिक मोटिवेशन उनकी हाई होती है, सेल्फ एस्टीम हाई होता है। ऑल दीज फैक्टर्स नीड टू बी कंसिडर। उनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, राइट? इसके अलावा वेज टू आइडेंटिफाई अ गिफ्टेड चाइल्ड इन अ क्लासरूम इज उनकी टीचर्स से बात करके, उनकी टीचर्स की जजमेंट जान के, उनकी स्कूल के रिपोर्ट कार्ड्स देख के, उनके पेरेंट्स को इंटरव्यू करके, उनके पीयर से रेटिंग्स लेके भी पता चल सकता है कि कोई बच्चा गिफ्टेड है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट्स। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट इज एडमिनिस्टर्ड। उसके बेसिस पे 2 टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट या ग्रुप टेस्ट। आप इंडिविजुअल पे कर रहे हो या एक ग्रुप पे कर रहे हो इकट्ठे।
ग्रुप वुड मीन कि आपको किसी एक पर्सन से रैपो फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, आप एक पूरे ग्रुप के साथ एक ही टाइम पे ये टेस्ट कर सकते हो। इंडिविजुअल टेस्ट के एग्जाम्पल ऑफ कोर्स आपको पता होने चाहिए, विस्क जैसे बैटरी है एंड ऑल दीज। सो बेसिकली फॉर एवरी काइंड ऑफ टेस्ट यू नीड टू नो द एग्जाम्पल। Second category will be based on the use of language. Use of language के basis पे there are verbal tests, there are non-verbal tests, and there are performance tests. Verbal test obviously makes use of language either in the form of written language or oral language. तो जिसको लैंग्वेज नहीं आती है या जिसमें लिटरेसी नहीं है, वो illiterate person cannot kind of do these tests, can't take these tests. नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो लैंग्वेज की जगह सिंबल्स यूज करता है। अगर आपने स्कूल में रेवंस प्रोग्रेसिव मेट्रिसेस किया है, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट, क्योंकि वो लैंग्वेज कहीं नहीं यूज करता। अगर आप रिकॉल करो, इट यूजेस सिंबल्स, इट यूजेस दोज पिक्चर्स। परफॉर्मेंस टेस्ट ऑन दी अदर हैंड यूजेस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप ब्लॉक्स बनाते हो या पजल करते हो या जो भी है, ये जहां आपको कुछ मूव करना पड़ रहा है, दैट्स अ परफॉर्मेंस टेस्ट। ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए इनके डिफरेंसेस एंड examples under each of these. Culture fair and culture bias test. Of course, culture fair जैसा नाम सजेस्ट ही कर रहा है, जिस कल्चर में, जिस environment में वो टेस्ट डेवलप हुआ है, सिर्फ उसी के लिए वो बना है या बाकी सारे कल्चर में उसको यूज किया जा सकता है, दैट्स अ कल्चर फेयर टेस्ट। अगर वो सब कल्चर में यूज हो सकता है। एंड कल्चर बायस्ड वुड मीन जहां जिस कल्चर में वो डेवलप हुआ है सिर्फ वहीं यूज हो सके, दैट्स कल्चर बायस, उसके टुवर्ड्स बायस। जैसे वेशलर्स स्केल में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाइट हाउस में अभी तक कितने प्रेसिडेंट्स रहे हैं, दैट्स अ कल्चर बायस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एक नॉन अमेरिकन को ये जानना है, जनरल नॉलेज, मतलब उसमें जरूरी नहीं है कि वहां के कितने प्रेसिडेंट्स रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया इज अनदर टॉपिक, जिसमें आपको एटलीस्ट 5 नाम पता होने चाहिए जो यहाँ पर इंडिया में डेवलप हुए हैं टेस्ट। जैसे भाटियाज बैटरी इज अ वेरी फेमस वन, देन यू हैव ड्रॉ अ मैन टेस्ट बाय प्रमिला पाठक, सेवरल सच नेम्स। SM मोहसिन का बहुत सारे टेस्ट हुए हैं। हमारे यहाँ अडेप्टेशंस भी हैं कुछ वेस्टर्न टेस्ट्स की, तो कोई भी 5 नाम करेंगे तो यू विल बी इन अ सेफ जोन। Other than this, of course, there is this small paragraph here on page 14, which you really need to know. Boxes, please, psychology में या किसी भी subject में miss मत कीजिए. Whenever you are preparing for board examination, please don't miss out on any particular box. Here it talks about some misuses of intelligence tests. I remember when one of my students had mentioned कि मैम मेरा बहुत पहले एक IQ test हुआ था and उसमें मेरा below average IQ आया था, और वो क्लासिफिकेशन या वो टैग जो मेरे माइंड में रह गया, वो दैट हैज कम अलोंग विद मी थ्रू द ईयर्स एंड आई स्टिल फील आई एम बिलो एवरेज जस्ट बिकॉज उस टेस्ट का रिजल्ट बिलो एवरेज आया था। तो दैट्स ऑल्सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड द रॉन्गली कैटेगराइज्ड इंटरप्रिटेशन। तो किसी को एक तो स्ट्रेट अवे आप एक टेस्ट के बेसिस पे कभी नहीं आप किसी को ऐसा कैटेगराइज कर सकते हैं। यू नीड टू डू सेवरल टेस्ट्स टू कम टू अ कंक्लूजन। सेकेंडली, जब ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट के स्कोर्स निकलते हैं, इट्स समवेयर स्टीरियोटाइप्स, इट क्रिएट सर्टन स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट दैट पर्सन। सब शर्म से अपना स्कोर छुपाने की कोशिश करते हैं कि वो मेरा बिलो एवरेज आ गया, मैं तो किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। इतना इजी इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट एक ठीक मेजर है इंटेलिजेंस का। जैसे आप सिर्फ SPM या RPM के बेसिस पे किसी की इंटेलिजेंस नहीं निकाल सकते, आपको और भी तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट पता होने चाहिए जो वर्बल लैंग्वेज मेजर करते हो या जो स्पेशल स्किल्स मेजर करते हो। जैसे हमने गार्डनर की थ्योरी में किया ये है कि देर आर 8 to 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, so you need to know that. Maybe a person high on logical mathematical intelligence will do good in this Raven's progressive matrices. So that doesn't mean कि musical intelligence वाला low on intelligence है. So ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट टॉपिक पेज 15, कल्चर एंड इंटेलिजेंस। कल्चर को इंटेलिजेंस में कंसिडर करना क्यों ज़रूरी है, किसी के इंटेलिजेंस को इवेल्युएट करने में क्यों ज़रूरी है कि कल्चर कंसिडर किया जाए। कल्चर बेसिकली आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, हमें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए।
जैसी प्रॉब्लम्स हम अपने कल्चर में फेस करते हैं उसी हिसाब से हमारी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस डेवलप होती है उस कल्चर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटीज़ में ऑफ कोर्स ज़्यादा सोशल रिलेशंस या फैमिली रिलेशंस को मे बी इम्पोर्टेंस सेकेंडरी दी जाती है. इस वजह से हमारी वहाँ की इंटेलिजेंस जो है वो थोड़ी टेक्नोलॉजिकली इंक्लाइंड है. इंडिया ऑन दी अदर हैंड, हमारा जो कंट्री है या हमारा कॉन्टिनेंट है, हमारे यहाँ पर कल्चर इज ऑल्सो, आई मीन लाइक द सोसाइटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी थिंक ऑफ आवर सोसाइटीज एंड फैमिलीज फर्स्ट एंड देन वी थिंक ऑफ आवर ओन गोल्स. तो इस वजह से हमारी इंटेलिजेंस में सोशल इंटेलिजेंस भी जुड़ जाती है. सो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज़ में सोशल इंटेलिजेंस में भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होएगी. इस वजह से टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस शो करती है. जो कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के फीचर्स क्या होते हैं कि दे आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, दे आर अचीवमेंट ओरिएंटेड, दे फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी. ऑन द अदर हैंड इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को एक टर्म दिया गया है, मतलब हमारे यहाँ बुद्धि इज बेसिकली व्हाट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज. हमारे यहाँ इंटेलिजेंस को होलिस्टिकली देखा जाता है, इट्स सीन एज अ होल. इस होल होलिस्टिक इंटेलिजेंस में 4 कंपोनेंट्स आते हैं. कॉग्निटिव, जो कि टेक्नोलॉजिकल में भी है. सोशल इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल इंटेलिजेंस विच इज द इंडियन इंटेलिजेंस. इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस. कॉग्निटिव में ऑफ कोर्स आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हो, कितना अच्छा इवेल्युएट करते हो. सोशल कॉम्पिटेंस में आप कितना रिस्पेक्ट शो करते हो एल्डर्स के टूवर्ड्स, आप कितनी कमिटमेंट शो करते हो एल्डर्स के टूवर्ड्स, नीडी को कितना हेल्प कर रहे हो, ये हमारी सोशल कॉम्पिटेंस है, जो कि सिर्फ इंडिया या हमारे जैसे कंट्रीज में आता है. इमोशनल कॉम्पिटेंस, इमोशनली कितना आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटर कर सकते हो, कितने ऑनेस्ट हो, कितने पोलाइट हो. ऑल दीज अगेन आर द फैक्टर्स इंक्लूडेड ओनली इन इंडियन इंटेलिजेंस और इंटीग्रल इंटेलिजेंस. एंड एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस में आता है हमारी लेवल ऑफ कमिटमेंट, हमारी पेशेंस या हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑल दीज. सो यू नीड टू नो द वेरियस फीचर्स ऑफ ईच ऑफ दीज डायमेंशंस. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी में कहीं गोलमैन का नाम नहीं दिया गया, बट अदरवाइज गोलमैन हैज बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. I'll quickly mention this from the cue cards which I made for myself. Goldman suggests that emotional intelligence consists of 5 major parts. These 5 major parts basically are knowing our own emotions. We should know our own. If we know our own emotions, we are managing our own emotions. We can motivate ourselves well. We can recognize emotions of others as well. We can handle relationships well. तो हम high on EQ हैं. Sorry, correction. We are high on EQ then. अकॉर्डिंग टू गोलमैन एक प्रोडक्टिव और हैप्पी लाइफ जीने के लिए EQ इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन IQ. ये क्वेश्चन बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में दिखेगा, वाई इज EQ मोर इम्पॉर्टेंट दैन IQ. सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स. अकॉर्डिंग टू गोलमैन ही मेंशन टू लीव अ हैप्पी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव हाई EQ. आपको एक ऑब्वियसली जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आर्ग्यूमेंट में 2 लोग फंसे हों, जो आदमी उस आर्ग्यूमेंट को एलोंगेट करता जा रहा है, अपनी शॉर्ट टेम्परामेंट दिखा रहा है, वो लो ऑन EQ है. जिसको पता ही नहीं है कि वो कब क्विट करे उस आर्ग्यूमेंट से या उस आर्ग्यूमेंट को बढ़ने से कैसे रोक सकता है, तो वो लो ऑन EQ अगर उसको नहीं समझ में आ रहा. Agar on the other hand, if a person shows patience and the kind of calmness required to solve a problem, that's an example of good amount of EQ. मेयर एंड सलोवे इनकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी होगी, वो डेफिनेशन जरूर लिखो, चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई भी क्वेश्चन आए, यू प्लीज मेंशन दैट डेफिनेशन फॉर श्योर. It says the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and action. That's high EQ, emotional intelligence. अगर ये क्वेश्चन आता है why is emotional intelligence more important, then you have to consider this paragraph on page 17. It says emotional intelligence is receiving increasing attention. Why? Because it is aimed at providing beneficial effects on academic achievement. It encourages cooperative behavior, it reduces antisocial activities, and it helps prepare students for bigger problems of life.
ऑल्सो एक छोटा बॉक्स इस पेज पे है विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन, ये भी आपको पता होने चाहिए. देर आर अबाउट 5 points, or at least 2, 3 to 4 points in this box. Then comes aptitude and interest, and how are they related to intelligence? Both aptitude and interest and intelligence, the three things basically, aptitude, interest and intelligence are important in career counseling. जब career counselors बैठते हैं आपका काउंसल करने के लिए, आपकी जानने के लिए कि आपकी एबिलिटी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी होगी, तो ये तीनों चीजें कंसिडर करना अलॉन्ग विद योर पर्सनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका एप्टीट्यूड बेसिकली वुड मीन योर अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर एरिया. आप में एक पोटेंशियल इन्नेट होता है हमारा, ऑलरेडी हमें अंदर होता है, उसको पॉलिश करना जरूरी है. तो अंडरलाइन पोटेंशियल इज एप्टीट्यूड, उसको पॉलिश करके उसको स्किल बनाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है. अगर आपका इंटरेस्ट एक एरिया में, आपका एप्टीट्यूड है और आपकी रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस है उसमें, ये तीनों चीज हैं, तो यू आर वेरी मच लाइकली टू डू वेरी वेल इन अ पर्टिकुलर एरिया. दैट्स द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. इंटरेस्ट इज अ प्रेफरेंस. तो जरूरी है कि जब आप इनके डेफिनेशंस लिखो, इनके हाइलाइट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है. एप्टीट्यूड का हाईलाइटेड टर्म जो आप लिखोगे डेफिनेशन में अंडरलाइंग पोटेंशियल है. इंटरेस्ट का हाईलाइटेड टर्म प्रेफरेंस है. इंटेलिजेंस ऑफ कोर्स यू नो नाउ सेवरल डेफिनेशंस व्हिच आर देयर. एप्टीट्यूड टेस्ट बेसिकली बहुत टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट बनाए गए हैं स्पेसिफिकली फॉर द केस, फॉर द पर्पज ऑफ करियर काउंसलिंग. There are two kinds of batteries, aptitude batteries. There are multiple battery aptitude tests, which is generalized aptitude battery, and then there are independent batteries. Multiple batteries would mean जैसे DAT एंड कुछ स्कूल्स में DBDA भी करवाया जाता है. इन बैटरीज में बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं. कुछ स्पेशल स्किल को करते हैं मेजर, कुछ मैकेनिकल एप्टीट्यूड मेजर करते हैं, कोई क्लरिकल एप्टीट्यूड मेजर करता है. सो दैट्स बेसिकली अ बैटरी ऑफ टेस्ट्स. इंडिपेंडेंट बैटरी में सिर्फ एक टेस्ट आएगा, वो एक ही एप्टीट्यूड को मेजर करेगा. जैसे सिर्फ क्लरिकल एप्टीट्यूड मेजर करो, दैट्स अ इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट. तो ये दो टाइप्स ऑफ बैटरीज आपको पता होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीपल. देन कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस एंड हाउ आर दे रिलेटेड. क्रिएटिविटी जो है ऑफकोर्स ग्रेड 11 में भी ऑफकोर्स हमने, इफ यू रिमेम्बर, ये चीज डिस्कस हुई थी. क्रिएटिविटी वुड डिनोट ओरिजिनलिटी. अगर आप में ओरिजिनलिटी कितनी है, आप में फ्लुएंसी कितनी है, आप कितना इलेबोरेट कर सकते हो, आप कितने फ्लेक्सिबल हो, दैट्स योर क्रिएटिविटी. अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का जो रिलेशन है वो हम कुछ पॉइंट्स में डिपिक्ट करेंगे. So creativity basically Terman, as I had very clearly mentioned in the portion under giftedness, Terman ने कुछ गिफ्टेड बच्चों पे ये स्टडी की थी और ये देखा कि क्रिएटिविटी, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली गिफ्टेड चिल्ड्रन क्रिएटिव हों ये जरूरी नहीं है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाई giftedness or giftedness in intelligence is not a necessary condition for a person to be creative. Second point under this will be given by Guilford. Guilford का नाम NCERT में आपको नहीं दिखेगा इस particular topic में, but just for your information, he said that there is a minimum level of intelligence required for a person to be creative. तो पहला point था high giftedness in intelligence does not necessitate this particular point that a person is creative. Second point, there is a minimum level of intelligence required for a person to be creative. And then the relation between creativity tests and intelligence tests. Creativity tests जो है वो divergent thinking को measure करते हैं और intelligence tests convergent thinking. So diverging, converging, right? So converging is you are reaching one point, one solution. That's intelligence. Diverging is creativity. You are looking at several solutions. So ये difference again. This is another difference. So this was about creativity and intelligence, and this was about this particular chapter, intelligence का जो हमने first chapter अभी cover किया है. The chapter's title is Variations in Psychological Attributes. कल के वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए थे. आज के वीडियो के अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी के क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे. So if you would revise this chapter with the help of all the questions which have been mentioned, you can be assured, you can feel confident about the fact कि आपने ये chapter completely cover कर लिया है.
तो प्लीज रिवाइज करो, पॉइंट्स में आंसर करो, पैराग्राफ्स नहीं एंटरटेन करो, टैबुलर फॉर्म में आंसर करो इफ इट्स अ डिफरेंस. ट्राई टू सी क्वेश्चन बैंक बनाओ अपने हिसाब से भी चैप्टर का. दीज आर सम ऑफ द टिप्स टू काइंड ऑफ प्रिपेयर साइकोलॉजी. And all the best. I'll come up with the next chapter very soon, which is a chapter on personality, self and personality. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, so you can please feel free to leave a mail on the email ID which I'll mention in the description box today. So all the best, guys, and I really hope that this would be helpful. Thank you for watching. Thank you.